Yes, hello students. This is your chemistry class. DNA block एलिमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी तुम लोगों ने। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें से 2 क्लास तुम्हारे हो चुके हैं। एक में टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरे में नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 2 क्लासों में डिस्कस हो चुका है। आज के क्लास में हम थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उनकी के लिए जो थ्योरीज अडॉप्ट की गई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे ओल्ड थ्योरी है वार्नर्स थ्योरी, और वार्नर्स थ्योरी के आधार पे ही इसका जो आइसोमेरिज्म है वो भी एक्सप्लेन होती है। तो सबसे जो अर्लियर थ्योरी आई वजूद में, उसका हम आज इस क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज वार्नर्स थ्योरी एंड isomerism in coordination compounds. Now theories of bonding in complex compound, तो ये 5 तरह की थ्योरी है। वार्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जस्ट 2 मिनट वेट। इनमें से हम वार्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में एक्सप्लेनेशन। बाकी 2 थ्योरीज, लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, भी इसी तरह से रिलेटेड है। तो मेन जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो 3 है: वार्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज के क्लास में हम बात करेंगे वार्नर्स थ्योरी। Now, Warner's coordination theory. Warner's in 1893 proposed coordination theory to explain the properties and structures of various metal amines of cobalt, chromium, platinum, etc. It was first successful attempt which satisfactorily described the formation of coordination compounds from stable molecules. The important postulates of coordination theory are: every element exhibits 2 types of valencies. First, primary valency, and second, secondary valency. In modern terminology, primary valency corresponds to the oxidation state of the central metal, and secondary valency represent the coordination number of the metal. Primary valency satisfy the negative ion. This is also called principal ionizable or ionic valency. Its attachment to the metal is shown by dotted lines. अभी diagram में दिखाएंगे. The secondary valency is satisfied by the neutral molecules or negative ion. This valency is non-ionic or non-ionizable. The donor atoms of the ligands which satisfy the coordination number are directly attached to the metal atom and shown by thick lines. Thus, the coordination compound COCl3.6 NH3 may be represented here. तो ये डॉटेड लाइन से जो ये आयन से सेटिस्फाई हो रही है इसकी वैलेंसी, ये कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी।
और ये मॉलिक्यूल से या आयन से यानी लिगेंड से सेटिस्फाई हो रही जो वैलेंसी कोबाल्ट की थिक लाइन से दिखाई गई है, ये क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी. Every metal has a fixed coordination number. For example, cobalt third and platinum fourth were recognized as having coordination number 6, while Cu second has 4. In order to designate materials held by secondary valency, it has become customary to include metal and all such material in square bracket when writing formula. For example, coordination compounds such as COCl3.6NH3, PTCl36NH3 are written as CONH3 whole 6 NH3 है यहाँ पे, एंड Cl3. तो ये आयन जिससे कि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है वो Cl3 है, और जिससे सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है सेंट्रल मेटल की वो है NH3 या लिगेंड्स. ये आयन भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है. और PtCl46NH3 किस तरह से लिखेंगे? PtNH3 होल 6, ये था CuCl3 का कोऑर्डिनेशन फार्मूला, और ये है तुम्हारा प्लेटिनम इस NH3C6Cl4. तो प्राइमरी वैलेंसी कहाँ से सेटिस्फाई हो रही है? क्लोरीन से, और सेकेंडरी हो रही है फ्रॉम अमोनिया मॉलिक्यूल. Every element tends to satisfy both its primary and secondary valencies. A negative ion when present in the coordination sphere shows a dual behavior. It may satisfy both primary and secondary valencies. The presence of negative ion in the coordination sphere reduces the charge on the complex ion by the amount of charge possessed by it, and the negative ion present in the coordination sphere are not ionized. Thus, the following coordination compounds will have varying number of ionizable chlorine atoms, but coordination number remains same. अब ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मॉलिकुलर फार्मूला, फिर चार्ज ऑन द कैटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेकेंडरी वैलेंसीज को जो सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी, और लास्ट में है टोटल नंबर ऑफ आयंस. तो PtCl6 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, PtCl4 6NH3. मॉडर्न फार्मूला, जो पहले इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस तरह से लिखा जाता था, मॉडर्न फार्मूला क्या है? PtNH3Cl6Cl4. चार्ज ऑन द कैटायन +4 हो जाएगा, 4Cl अटैच है, यानी प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी NH3 6 है तो ये 6 हो जाएगा. प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? जितना कि चार्ज ऑन द कैटायन होगा, या Cl4 सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी हो गई है, और नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे इसमें? 5. 4 आयन क्लोराइड के हैं और 1 प्लेटिनम का. ठीक है. इसी तरह दूसरा कंपाउंड है PtCl4.5NH3. इसको इस तरह लिखेंगे PtNH3 होल 5 Cl3. यहाँ पे चार्ज ऑन द कैटायन 3 क्लोराइड अटैच है एनायन से, कैटायन से, तो +3. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 4. 4 Cl3 थे यहाँ पे, तो प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है? क्लोरीन से, तो प्राइमरी वैलेंसी 4. नंबर ऑफ आयन कितने हैं? 4, 3 ये और 1 ये तो पूरा तुम्हारा लिगेंड्स में चला गया. उसके बाद है PtCl4.4NH3. यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन फार्मूला मॉडर्न है PtNH3 होल 4 Cl2. चार्ज ऑन द कैटायन +2 हो जाएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ये 2 6. प्राइमरी वैलेंसी यानी ये सेकेंडरी वैलेंसी, ये प्राइमरी वैलेंसी 4. नंबर ऑफ आयन 3, 2 आयंस एंड 1 Pt आयंस. अब इसी तरह से अगला है PtCl4 3NH3. यहाँ पे 1 Cl आयन इस पूरे कैटायन के साथ है, तो
charge on the cation +1, coordination number 6, 3 and 3, coordination 6 ligands. Primary valency 4, क्योंकि 4 क्लोरीन यहाँ पे अटैच है पीटी से, और नंबर ऑफ आयन 2। इसी तरह से ये वाला कंपाउंड है PtCl4 2NH3, इसमें क्या है, चार्ज नहीं, कोई भी एनायन यहाँ कैटायन एनायन नहीं अटैच है, तो चार्ज इस पे 0 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 3 and 4, एंड प्राइमरी वैलेंसी 4 Cl है, और ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, चूंकि इस पे एनायन या कैटायन नहीं है, ये न्यूट्रल है। The ligands which satisfy the secondary valencies are directed towards fifth position in space. The geometry of the complex on ion depends on the coordination number. If the metal has coordination number 6, the complex is octahedral. That is 6 position around the metal are occupied by 6 donor atoms of ligands. इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। ये है स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स और ये टेट्राहेड्रल, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। On the other hand, if the coordination number is 4, the geometry of the complex may be tetrahedral or square planar. Coordination number 4 होने पे ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो लिगेंड्स इस तरह से सेंट्रल मेटल से जुड़े होंगे, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। 4 होने पे 2 पोजीशन होगी, इस तरह से भी हो सकता है जो कि स्क्वायर प्लेनर, और इस तरह से भी टेट्राहेड्रल। The geometry of the complex may be tetrahedral or square planar. This postulate predicted the existence of different types of isomerism in coordination compound. अब ये स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के एग्जाम्पल हैं। तो ऑक्टाहेड्रल इसमें सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, जितने भी तुम्हारे दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स आयन, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कितना है, कैसा है, ऑक्टाहेड्रल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 6 है, क्योंकि 6 लिगेंड्स सभी में अटैच है सेंट्रल मेटल से। स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 लिगेंड्स अटैच है सबसे, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है इनका। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह के कंपाउंड का है, इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। इन CONH3 4Cl2 कौन सा कंपाउंड है, इसमें नहीं है। Cl. Warner was able to isolate 2 isomers. He predicted an octahedral structure for the coordination number 6 because only octahedral structure can form 2 isomer, 1, 2 and 1, 6. The planar, hexagonal and trigonal prism arrangement will give 3 isomers. इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 1, 2, 6 ये 6 आइसोमर्स कहलाएगा। ट्रांस आइसोमर्स, जब ये जो लिगेंड्स अटैच हैं, सेम अटैच जो हैं, ये सामने सामने होंगे तो ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। Similarly, the existence of 2 geometrical isomers of the complex PTNH3 whole twice Cl2 was proved by accepting square planar configuration। इस तरह से, तो इसमें सिस में क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन NH3 NH3 लिगेंड्स प्लेटिनम से इस तरह से अटैच है, और ट्रांस आइसोमर में एक सामने सामने इस तरह से होंगे। The postulates of Horner's coordination theory were actually based on experimental evidence rather than the theoretical. A large number of metal amines were studied by Warner using molar conductance value as to ascertain the number of ions per molecule, and chemical methods such as precipitation of chloride by AgNO3 as to determine the number of ionizable chloride ion per molecule. The following experimental data regarding cobalt
amines well supported the postulate that the secondary valency of 6 is maintained in all the cobalt amine, and when the chloride ion enters the coordination sphere, it decreases the positive charge on the complex ion by 1 unit. तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ आयंस इन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आयनिजेबल क्लोराइड आयन और सेकेंडरी वैलेंसी आयन फॉर्मेशन, ये सारी चीजें। कोबाल्ट COCl3 6NH3 है, इसमें कि नंबर ऑफ आयंस इन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3 क्लोराइड आयन और 1 कोबाल्ट आयन, 4 हो गए। आयनिजेबल क्लोराइड आयन 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6, तो इस तरह से इसका 6 लिगेंड्स यहाँ पे जुड़े हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CONH3 होल 6 एंड Cl3 यहाँ पे आउटसाइड में लिखा जाएगा। इसी तरह COCl3 5NH3H2O है, तो नंबर ऑफ आयंस इन मॉलिक्यूल कितना है, 4, 3 एंड 4, एंड आयनिजेबल क्लोराइड आयन 2 हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 5NH3 मॉलिक्यूल लिगेंड और एक H2O। तो इसका आयन जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CONH3 होल 5H2O Cl3। इसी तरह इधर है तुम्हारा COCH3 5NH3, इसमें नंबर ऑफ आयंस 3 हो जाएंगे, आयनिजेबल 2 हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो जाएगी, एक क्लोराइड भी यहाँ आकर के सेंट्रल मेटल से जुड़ेगा, तो इस तरह से ये हो जाएगा CONH3 होल 5 Cl2। अगले दो कंपाउंड इसी तरह COCl3 4NH3 का फॉर्मूला हो जाएगा CONH3 होल 4 Cl2 Cl, और COCl3 NH3 हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये क्योंकि यहाँ पे 0 है नंबर ऑफ आयंस, तो ये हो जाएगा CONH3 होल थ्राइस Cl3। These are the Warner's theory which explain the coordination chemistry of the coordination compounds. Now isomerism in coordination compounds. The compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties on account of different structure or spatial arrangement are called isomers, and the phenomenon as isomerism. Isomerism is a Greek word. Iso means equal and meros means parts. Isomerism is a common phenomenon in organic chemistry, as you know. In inorganic chemistry, the coordination compound exhibit various types of isomerism, which may be divided into two main types. First, structural isomerism, and second, stereoisomerism. First, structural isomerism is displayed by compounds that have different ligands within their coordination spheres. That is, their structure are different. Same ligand, same central metal atom होता है, लेकिन इनके structure different होते हैं. This type of isomerism is further subdivided into various types. First, ionization isomerism, hydrate isomerism, coordination isomerism, linkage isomerism, polymerization isomerism, and coordination position isomerism. तो आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे. सेकेंड टाइप आइसोमेरिज्म होती है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. Compounds are stereoisomers when they contain the same ligands in their coordination sphere, but differ in the way that these ligands are arranged in space. Now, stereoisomerism is also of two types, geometrical isomerism and optical isomerism. First, we discuss about the structural isomerism. The first type इसका था ionization isomerism. This type of isomerism arises when the coordination compounds give different ion in solution. For example, there are two isomers of the formula CONH3 whole 4 BrSO4. ये इसको जब आयनाइजेशन इसका कराएंगे तो दो तरह के आयन देता है.
वायलेट कलर है इसका, आयनाइजेशन होने पे ये पेंटा एमीन ब्रोमीडो कोबाल्ट थर्ड आयन प्लस सल्फेट आयन देता है। दिस आइसोमर गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। इस तरह से जो सल्फेट आयन आ रहा है वो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट देता है। वाइल द अदर है CONH3 होल 5 BrSO4 इसका आयनाइजेशन कराते हैं, जो कि रेड इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है दूसरे का। इसमें देखो लिगेंड और दोनों सब सेम है लेकिन पोजीशन यहाँ बदल गई है। SO4 स्फेयर में है और Br बाहर, तब इसका कलर रेड होता है। और इसका आयनाइजेशन कराने पे पेंटा एमीन सल्फेनेटो कोबाल्ट थर्ड आयन प्लस ब्रोमाइड आयन मिलता है। एबव आइसोमर्स गिव्स लाइट येलो प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी ये ब्रोमाइड से यहाँ जो प्रोड्यूस होती है उससे रिएक्शन करके सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है और AgNO3। Another example of ionization isomers are, ये है सामने तुम्हारे, this PTOH whole twice NH3 whole 4 SF4 and this। तो इसमें क्या है, पोजीशन लिगेंड्स की बदली है, तो उसी तरीके का कि आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे। रिएक्शन में ये डिफरेंट आयन देगा और ये डिफरेंट देगा। इसी तरह ये दूसरा PTNH3 4Cl2 Br2 है, यहाँ क्या हो गया PTNH3 4 Br2, यानी इनमें सारे जो लिगेंड मेटल आयन सब सेम है, सिर्फ इनकी पोजीशन बदल गई। तो ये क्या है, आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन कराने पे ये डिफरेंट आयन देते हैं। इसी तरह ये है तुम्हारा ये दोनों CONH3 होल 4 Cl2 NO2 हो गया। यहाँ क्या हो गया CONH3 NO4 Cl NO2, यानी सेम सारी चीजें हैं लेकिन इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। नाम सबके नीचे दिए हुए हैं, सब पढ़ सकते हो। Hydrate or solvent isomerism, second type of isomerism. This type of isomerism arises when different number of water molecules are present inside and outside the coordination sphere. This isomerism is best illustrated by the three isomers that have the formula CrCl3 6H2O, chromium का ये coordination compound है। तो CrH2O होल 6Cl3 सेम है, वायलेट कलर का होता है ये। ऑल द 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड टू क्रोमियम, इट हैज 3 आयनिजेबल क्लोराइड आयंस। ये क्या है, आयनिजेबल क्लोराइड आयन। दूसरा आइसोमर इसका CrH2O यहाँ 5 हो गया, Cl स्फीयर के अंदर NCl2 पॉइंट H2O, तो Cl5 H2O5 यहाँ था, 6 ये हो गया। इसका कलर ग्रीन होता है। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड टू क्रोमियम, इट हैज 2 आयनिजेबल क्लोराइड आयंस। 1 वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन बी इजीली लॉस्ट। तो ये 2 आइसोमर हो गए। तीसरा और है इसी फॉर्मूले का, CrH2O4 हो गया यहाँ, Cl2 Cl2H2O, इसका कलर भी ग्रीन होता है। 4 water molecules are coordinated to chromium, it has 1 ionizable chloride. This is other examples of hydrate isomers are, इस तरह से ये देखो वाटर मॉलिक्यूल अमोनिया और का अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे कहाँ है, ये स्फीयर के अंदर है और यहाँ बाहर है। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, हाइड्रेट आइसोमर है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है ये सामने H2O, इसमें स्फीयर के अंदर है या स्फीयर के बाहर है। उसी तरह से ये तीसरा, सबके नाम ये नीचे तुम्हें दिए हुए हैं, इनको पढ़ सकते हो। उसके बाद CrPy2H2O2 ये, और ये दोनों कंपाउंड तुम्हारे जो है क्या है, हाइड्रेट आइसोमर है। इसमें भी H2O स्फीयर के अंदर है और बाहर भी है, जबकि इसमें सिर्फ अंदर है। Now third type of structural isomerism is coordination isomerism. This type of isomerism is observed in the coordination compound having both cationic and anionic complex ion. The ligands are interact in both the cationic and anionic ions to form isomers. Some examples are
ये है तुम्हारा PTNH3 होल 4 COCl4 है ये, और ये क्या हो जाएगा जस्ट CuNH3 होल 4 PTCl4, यानी जो सेंट्रल एटम है ये दोनों में इधर इसकी पोजीशन उधर हो गई और इसकी इधर, तो दोनों ये क्या कहलाएंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, सारी चीजें सेम है लेकिन इसका अरेंजमेंट अलग हो गया, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, यानी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन हो गया यहाँ। उसके बाद दूसरा इसी तरह का एग्जाम्पल है ये हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड ट्राई ऑक्सलेट कोबाल्ट, और इसका नाम भी नीचे दिया है। इसमें क्या है CrNH3 होल 6 COC2O4 होल 3, यहाँ क्या हो जाएगा CONH3 होल 6 एंड CrC2O6। दीज आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इसी तरह ये दो कंपाउंड है, ये तुम्हारा, इसमें भी देखो वही चेंज हो जाता है, इधर आ गया ये इधर आ गया। और अगला एग्जाम्पल ये है ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड एंड हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड, और दूसरा ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम थर्ड एंड हेक्सासाइनोक्लोरेट थर्ड। दोनों का देख सकते हो स्ट्रक्चर सामने है तुम्हारे। ये क्या है कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, यहाँ CO की जगह यहाँ Cr हो गया और Cr यानी क्रोमियम की जगह कोबाल्ट। Now linkage isomerism. This type of isomerism occurs in complex compound which contains amphident ligands like NO2, HCN, SCN, S2O3 and CO. These ligands have two donor atoms, but at a time only one atom is directly linked to the central metal atom of the complex. These types of isomers are designated by infrared spectroscopy. For example, CONH3 whole 5, NO2Cl2 and CONH3 whole 5, ONOCl2 are linkage isomers as NO2 minus is linked through N or through O. तो ये इस तरह की आइसोमर्स क्या कहलाते हैं, लिंकेज आइसोमर्स। और एग्जाम्पल इसके हैं यहाँ पे CONH3 होल 5 NO2 और ये CONH3 होल 5 ONO, जो एग्जाम्पल अभी बताया था। उसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ SCN2 है और यहाँ के NCS2 है, यानी मॉलिक्यूल्स एटम सारे सेम हैं, उनका अरेंजमेंट डिफरेंस हो जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद हम आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। ये भी दो तरह की है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू लिगैंड ऑक्युपाइंग डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम्स और आयंस। These ligands occupy positions either adjacent or opposite to one another. This type of isomerism is also known as cis-trans isomerism. Geometrical isomerism is very common in coordination number 4 and 6 complexes. Square planar complexes यानी coordination number 4 exhibit geometrical isomerism. इस तरह से ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स के फॉर्म में मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स विद जनरल फार्मूला Ma2B2 वेयर बोथ A and B are monodentate can have cis and trans isomer। फर्स्ट ईयर में आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक की पढ़ी है तो बहुत कुछ उससे भी क्लियर होगा। ट्रांस आइसोमर्स में जैसे ये सेम लिगैंड है, ये सेंट्रल मेटल्स के साथ में इस तरह से सामने सामने जुड़े होंगे, और सिस आइसोमर्स में क्या होगा कि ये इस तरह से होंगे, ए इधर और पी इधर होगा। एग्जाम्पल इसका PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये ट्रांस आइसोमर है, Cl सामने सामने NH3 और PT के साथ इस तरह से NH3Cl जब होंगे तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर है। ये complex with general formula Ma2BC can have cis and trans isomer। सेम जब यहाँ पे सामने होंगे, ए सेम है, सामने सामने है, तो ये ट्रांस आइसोमर होगा, और इस तरह से जब अरेंजमेंट होगा तो सेंट्रल मेटल के साथ लिगैंड का, तो ये कहलाएंगे सिस आइसोमर्स। एग्जाम्पल इसका PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2, यानी दो ये लिगैंड्स अलग अलग है,
बाकी ये दो सेम है, तो जब ये सामने सामने है तो ट्रांस आइसोमर, और सामने नहीं है, इस तरह से अरेंजमेंट है तो सिस आइसोमर्स। Complexes with general formula MABCD can have 3 isomers। इस तरह से जो सेम है ये सामने सिस आइसोमर्स सेकंड इस तरह से होगा, और थर्ड आइसोमर जो होगा इस तरह से होगा, क्योंकि इसमें चारों जो लिगेंड्स हैं वो सेम नहीं है। Structure of these isomers may be obtained by fixing the position of one ligand, say A, and placing others at trans position 1/1। यानी A की जगह हमने फिक्स कर दिया और इसके सामने 1/1 जो दूसरे लिगैंड है उनको उस पोजीशन ट्रांस की देंगे। 2 of these are cis and 1 is trans होगा। तो इस तरह से करने पे 2 तो सिस होंगे और एक जो होगा वो आइसोमर ट्रांस कहलाएगा। देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल PTNH3 NH2OH NO2 PyNO2। Square planar complexes having unsymmetrical bidentate ligands can also show geometrical isomerism. For example, platinum glycinato complex, that is PTGLY whole twice, exhibits symmetrical isomerism। इस तरह से सिस में ये तुम्हारा जो GLY ग्रुप है वो इस तरह से ये डोनेटिंग ग्रुप है NH2 PT के साथ इस तरह से अटैच है, और तो ये सेम तरह से जुड़े हुए हैं प्लेटिनम के साथ, तो ये सिस आइसोमर कहलाते हैं। ट्रांस में क्या होगा, ये जस्ट जैसे उल्टा कर दिया जाए, ये ग्रुप इस तरह से जुड़ा है लिगैंड और इसमें OCO इधर आ गया, तो इस तरह से इस तरह का आइसोमर क्या कहलाएगा, ट्रांस आइसोमर। Square planar complex of type MABAB can also show geometrical isomerism। इस तरह से AA AB है AB और यहाँ पे ABBA, ये AA इस तरह का ये सामने आ गया और इस तरह ये, तो ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। Now some point to be noted, geometrical isomerism is not observed in complexes of coordination number 2 and 3. Square planar complexes of the type MA4, MA3B and MAB3 do not show geometrical isomerism because in any of these cases the possible spatial arrangement are equivalent. Now, geometrical isomerism is not observed in the complexes of coordination number 4 of octahedral geometry. This is because in tetrahedral geometry, all the positions are adjacent to one another in these complexes. Now, octahedral complexes, अभी तक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 6 होता है वो होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। MA3B3 exhibit geometrical isomerism। इस तरह से MA3B3 type octahedral complex do not exhibit cis and trans isomerism. They exhibit facial and meridional isomerism। जो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, सिस एंड ट्रांस इस तरह से होगा। AA जो 4 इसमें लिगैंड सेम है इस तरह से सिस में, सिस है ये AA इधर है BA तो ये सिस आइसोमर है इस तरह के मॉलिक्यूल का MA4 B2, और ट्रांस आइसोमर में सेम जो लिगैंड्स है सामने सामने है AA BB इस तरह से। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड में होगा, यानी ऑक्टाहेड्रल में इस तरह की आइसोमेरिज्म होगी। इसका एग्जांपल ये है CONH3 whole thrice Cl3 and CONH3 whole thrice NO3 exhibit this types of isomerism। सिस फॉर्म है ये, इस तरह से अरेंजमेंट है ClNH3, यहाँ पे ClNH3 NH3 एक जगह सामने सामने है। दूसरा आइसोमर जो ट्रांस फॉर्म में है Cl सामने सामने NH3 और इधर भी NH3। तो these are the
cis and trans isomers having coordination number 6. Second example ये है CONH3 whole thrice Cl3 and CONH3 whole thrice. फेशियल और फैक जब आइसोमेरिन शो करेंगे, ये इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है। ये है तुम्हारा फेशियल या फैक, या इसको सिस फॉर्म कह सकते हो मेरे ख्याल से। और ये जो है तुम्हारा ट्रांसफॉर्म है, इसमें क्लोराइड क्लोराइड आयन इस तरह से। और तो ये कहलाता है फेशियल, पहला वाला स्ट्रक्चर। फेशियल और फैक आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑन द सेम फेस ऑफ octahedral and meridional or mer identical ligands on the meridian of octahedron, इस तरह का स्ट्रक्चर। Meridian means the diagonals of square keeping the metal at center. Octahedral complexes having bi-tended ligands of the type MAA2B2 or MAA2BC can also exist in cis and trans isomers where A is a symmetrical bi-tended ligand. For example, COEN whole twice Cl2 ion exists as two isomers. इस तरह से ट्रांसफॉर्म में Cl लिगेंड सामने सामने इस तरह से डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और EN इस तरह से। सिस फॉर्म में क्या होगा कि ये इधर EN है, एक इधर है, और Cl साइड टू साइड है। Octahedral complexes of the general formula MABCDF can exhibit 15 geometrical isomers. The only compound of this type, PTPYNH3NA2ClBrI, has been prepared so far. Until now, only 3 isomers of this complex have been isolated. Octahedral complexes containing unsymmetrical bi-tended ligands also exhibit geometrical isomerism. For example, CrGlY3 exists in cis and trans फॉर्म। इस तरह से स्ट्रक्चर इसका सिस एंड ट्रांसफॉर्म का। ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्म है और ये सिस फॉर्म है। ट्रांसफॉर्म सामने सामने होता है इस तरह से, ये ग्रुप और ये ग्रुप, और इसमें क्या है, ये ग्रुप साइड टू साइड है, ये ट्रांसफॉर्म है। The complexes of general formula Ma6 and Ma5 of octahedral geometry do not show geometrical isomerism. Now we come on optical isomerism. A coordination compound which can rotate the plane of polarized light is said to be optically active. When the coordination compounds have same formula but differ in their ability to rotate direction of the plane of polarized light are said to be exhibit optical isomerism, and the molecules are called optically active या optical isomers. प्लेन पोलराइज्ड लाइट जानते हो तुम लोग, जब जो पार्टिकल्स ऑफ द लाइट एक ही डायरेक्शन में जिनकी मोशन होती है, तब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाते हैं। ये आइसोमेरिज्म की चैप्टर में तुम लोग 11th में पढ़ चुके हो। The optical isomers are pair of molecules which are non-superimposable mirror image of each other. The essential requirement for the substance to be optically active is that the substance should not have a plane of symmetry in its structure. The isomer which rotates the plane of polarized right to right direction is termed dextrorotatory or deform, while the isomers which rotate the plane of polarized light to left direction is termed leorotatory or L-form. The two optically active isomers are collectively called enantiomers. Enantiomers are mirror image to each other and their physical properties are same.
Optical isomerism is expressed in the tetrahedral complex of the type MABCD, but no optical isomer has been isolated until now. Optical isomers rarely occur in square planar complex on account of the presence of axes of symmetry. Optical isomerism is very common in octahedral complexes. Octahedral complexes of general formula Ma2B2C2, MABCDEF या MAA triple या thrice MAA ट्वाइस A2, इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ए बी अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेट लिगेंड्स को शो करता है, ए शो करता है सिमेट्रिकल बाइडेंडेट लिगेंड्स को, और बाकी ये तुम्हारे लिगेंड्स हैं। तो एग्जांपल इसका Ma2B2C2 का इस तरह से है ये, जैसे PTPY2NH32Cl2, इसका एग्जांपल एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह दिखाई देते हैं ये दो आइसोमर। ये सिस डी आइसोमर जिसमें कि इस तरह से ये लिगेंड्स जुड़े हैं, और इसका जो ट्रांस एल आइसोमर है वो मिरर इमेज की तरह लगेगा, PY इस तरह से सामने होगा, NH3 ऐसा लगेगा जैसे मिरर में इसको देखा जा रहा है। तो जिस तरह से उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है उस तरह दिखाई देगा। यही दोनों को एक दूसरे के ऊपर हम सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने में PY इधर आएगा, इसका Cl के ऊपर आ जाएगा, और PY इसका Cl के साथ होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो अभी ऊपर देखा उसका ये एग्जाम्पल है MABCDEF। अगला ये एग्जाम्पल है PTPYNH3NH2ClBr का एग्जाम्पल इस तरह से है। ये सिस डी आइसोमर है ये पहला वाला, और इसका मिरर इमेज सामने है तुम्हारे ये NO2 NH3 इस तरह से सामने सामने एक देखने पे लगेगा जैसे कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहे हैं। इसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल है COEN होल थ्राइस 3+ का, ये सामने एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहा है। ये सब क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये, और ये दूसरा लियो रोटेटरी आइसोमर्स है। ये सारे क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अगला एग्जाम्पल है COEN2Cl2 का, ये सामने तुम्हारे मिरर इमेज एक दूसरे की दिख रही है। उसी तरह से पहला सिस और डेक्स्ट्रो और दूसरा लियो आइसोमर है। इसी तरह का ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। ये सारे काहे के ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं उन सब के ये एग्जाम्पल है। सम अदर एग्जाम्पल्स आर CrOX होल 3 FeTyPy, सारे का फुल फॉर्म जान चुके हो तो इनके भी नाम नोट कर लेना, थोड़ा सा कम साफ है। ये है COEN होल ट्वाइस NH3Cl, ऊपर होल स्फेयर के ऊपर 2+ है, और उसके बाद ये है तुम्हारा दो आइसोमर। तो इस तरह से आइसोमेरिज वार्नर थ्योरी जो भी एक्सप्लेन करती है आइसोमेरिज की, तो वार्नर थ्योरीज के साथ आइसोमेरिज भी तुम लोगों ने जाना कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कितने तरह की होती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये तुम्हारा आज का क्लास अब खत्म होता है। वार्नर थ्योरीज को भी पढ़ना, आइसोमेरिज्म भी पढ़ना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बाद बाकी की 2 थ्योरी जो बताई है कि डिस्कस करेंगे हम, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री को, और दूसरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दोनों ही इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है जिस पे हम अगले क्लासेस में बात करेंगे।